Hello students, this is the third video of this lesson. Now the third point is decimal form of rational numbers. Okay, decimal, now we have learned about the decimal fractions and decimal form. What is the meaning of decimal form? Writing any fraction using decimal point, that is called decimal form. अब ये रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म सिंपल है. ओके बहुत सिंपल होता है. एग्जाम्पल वन शॉर्ट एग्जाम्पल इज गिवन. राइट द रैशनल नंबर 7/4 इन डेसिमल फॉर्म. 7/4 मीन्स 7 divided by 4. Okay, the division is done here. So 7 means 7.000. Okay, means after every number, after units place, decimal point is there, that is considered, or decimal point can be added. Okay, it doesn't make any effect on its value. So 7 divided by 4, 4 ones are 4, remainder 3. Okay, then the decimal point is given, then 0 comes down. Okay, it becomes 30. Again 4 sevens are 28, right, remainder 2, and then 0 comes down, 4 5s are 20, remainder 0. Okay, here we get answer 1.75. 1.75, right? So 7 divided by 4, what answer we got? 1.75. What is this 1.75? 1.75 is the decimal form of this rational number. So this rational number 7/4, it can also be written in the decimal form as 1.75. This is the decimal form. Okay, isn't it simple? बहुत सिंपल है, सिर्फ डिवीजन करना वो परफेक्टली होना चाहिए. ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट इट. लेट अस गो टू सेकेंड एग्जांपल. राइट 2 इंटेजर 1/5 इन डेसिमल फॉर्म. अब ये मिक्स नंबर तो आप लोगों को मालूम है. ओके, देन फर्स्ट कन्वर्ट दिस मिक्स नंबर इनटू improper fraction. So 2 integer 1/5 is equal to 2 multiplied by 5 plus 1/5 is equal to 2 5s are 10 plus 1 11/5. Okay, it is given here. So what is the meaning of 2 integer 1/5? It is 11/5. Okay, 11/5 means 11 divided by 5. Okay, then divide 11 by 5. Here this division is done. Okay, answer you get 2.2. Okay, so what is the decimal form of 2 integer 1/5? It is 2.2. One more method is there. Okay, कौन सी method है? Now when you see this mixed number, this 2 is a complete number, means integer we say. Okay, then 1/5 is a fraction. तो ये fraction का decimal form निकालो. 2 तो already है ही, तो 1 divided by 5, तो 1 divided by 5 आंसर मिलेगा 0.2. ओके, एंड ये जो 2 है ये डेसिमल पॉइंट के पहले ऐड होगा. सो 2 इंटेजर 1/5 इज इक्वल टू 2.2, यानी यहां पर जो 0 है इसके बदले में क्या आएगा 2, देन 2.2. सो 2 इंटेजर 1/5 इज इक्वल टू 2.2, राइट. One more third method is given. What is the third method? Okay, these are the two methods. One more third method is given. Now our fraction is 11/5. From here it is taken 11/5. Okay, convert the denominator into either 10, 100 or 1000, something like this. Means what is its meaning? In decimal fraction. Okay, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वी गेट आंसर 22/10. नाउ कन्वर्ट दिस 22/10 इनटू, राइट दिस 22/10 बाय यूजिंग डेसिमल पॉइंट. तो नीचे कितने 0 है? 1 0 इज देयर, देन बिफोर 1 नंबर गिव द डेसिमल पॉइंट. सो आंसर इज 2.2. सी हियर, इन बाय ऑल द 3 मेथड्स आंसर कम्स 2.2. ओके, यू कैन फॉलो एनी मेथड. ओके, तो लेकिन एक बात है, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू 10, 100, 1000 like this all the time. Okay,
तो सारे एग्जाम्पल के लिए अगर सुटेबल और सिंपल कोई मेथड चाहिए तो देन यू कैन फॉलो दिस, राइट, दैट विल बी माई सजेशन और यू डिसाइड। 3 मेथड है आप लोगों के सामने, तीनों मेथड में से कौन सी भी एक मेथड फॉलो करो, ओके, आंसर करेक्ट दिया जाए। अगर आंसर करेक्ट है तो करेक्ट ही दिया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, राइट द रैशनल नंबर -5/8 इन डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, यहां पर अब निगेटिव न्यूमरेटर लिया है। ओके, नाउ इट इज ए नेगेटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव रैशनल नंबर, ओके, सॉरी, नेगेटिव फ्रैक्शन वी कैन से, ओके, उसको तो उस रैशनल नंबर तो है ही वो। देन द डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/8 ऑब्टेन बाय डिवीजन इज, अगर 5/8 का अगर डिवीजन किया तो आंसर मिलता है 0.65। ओके, अंडरस्टैंड इट। निगेटिव साइन का क्या किया है, ओके, ये निगेटिव साइन थोड़ा टाइम साइड में रखा है, तो 5/8 का आंसर मिला 0.625। ओके, एंड ऑलरेडी यहां पर निगेटिव साइन है तो बोथ दैट निगेटिव साइन इज ऑल्सो गिवन टू द आंसर, सो आंसर इज -0.625। सो अगर निगेटिव अगर मिलता है तो दिस मेथड यू कैन फॉलो। ओके, so in all the above examples we have obtained 0 as the remainder। okay, यहां पर देखो 0 remainder 0 remainder 0 remainder। okay, this type of decimal form of a rational number is called the terminating decimal form। तो ऐसे जो डेसिमल फॉर्म होते हैं रैशनल नंबर के, जिनका लास्ट में रिमाइंडर क्या आता है 0, सच rational numbers are called as terminating decimal forms। okay, terminating means what, division terminate होता है, terminate होता है यानी खत्म होता है, the end होता है उनका। okay, यहाँ पर 0 रिमाइंडर यानी हो गया terminate, यानी the calculation is stopped। okay, so they are called as terminating। okay, आप लोगों ने पिक्चर भी देखा होगा the terminator। ओके, सो दैट टर्मिनेटिंग यानी जो एंड होता है जिसका, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। सम मोर शॉर्ट एग्जांपल्स आर गिवन हियर फॉर, we will see all 4 examples, okay, because in that also some different rules are there। now let us see how the decimal form of some rational numbers is different। okay, अब अलग अलग कैसे आता है। write the number 5/3 in decimal form। ठीक है, 5/3 मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 3, यानी 5 को डिवाइड करना है 3 से, तो 5 इज डिवाइडेड बाय 3। ओके, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, डेसिमल पॉइंट दे दिया, देन 20 हो गया उसका, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2, 3 6 जा 18। ओके, अगर ये अभी ये देखो यहाँ पर फिर से अगर 0 दिया, अगेन 3 6 जा 18, फिर से 0 रिमाइंडर, अगेन 6 जा। ओके, मीन्स व्हाट विल हैपन, this 1.6666 this will continue, there is no end for that division। okay, then what answer is we got 5/3 is equal to 1.666 and ये डॉट 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 का मतलब क्या है, there is no end for that, ये खत्म न होने वाला है। ओके, खत्म नहीं होता यानी इसके पहले हमने एक वर्ड कौन सा यूज किया था, टर्मिनेटिंग यानी खत्म होने वाला। अब ये खत्म नहीं होता है, उसको लिया, उसके लिए कौन सा वर्ड आता है तो वो देखते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड ही है। ओके, तो ऐसे आंसर का ऐसा जो होता है 1.666 यानी एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, फिर से 666 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, देन सच आंसर इज रिटन एज 1.6 एंड अबव द 6 व्हाट इज डन, डॉट इज गिवन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डॉट, डॉट मीन्स 6 इज रिपीटिंग। ओके, वो डिजिट रिपीट हो रहा है, बार बार वही आ रहा है। ओके, सिंगल डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको डॉट। ओके, बाकी डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट के लिए उसके लिए क्या है, तो ये एग्जांपल देखते हैं। राइट द नंबर 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। तो 2 डिवाइडेड बाई 11। ओके, डायरेक्ट 2 को डिवाइड होता नहीं तो 0 पॉइंट पहले डेसिमल पॉइंट दे दिया। ओके, तो 0 उसका क्या हो गया 20। 11 1 से 11, रिमाइंडर 9, डेसिमल पॉइंट तो ऑलरेडी दिया है। 0 कितने भी 0 ऐड कर सकते हो आप, 0
11 8 से 88, रिमाइंडर 2। ओके, अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया। ओके, फिर से अगर ये कंटिन्यू किया, यहाँ रिमाइंडर 9 आया, नीचे भी रिमाइंडर 9 आएगा। ओके, यानी यहाँ पर आंसर कैसे मिलेगा? 0.181818। ओके, यानी 1818 की बैच रिपीट होगी। सो आंसर इज 2/11 इज इक्वल टू 0.1818 डॉट 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 का मतलब एंडलेस, राइट। तो जब ऐसे 2 नंबर रिपीट होते हैं, ओके, नहीं तो 2 से ज्यादा नंबर रिपीट है, 3 नंबर रिपीट होते हैं, 4 नंबर रिपीट अगर होते हैं, कभी कभी 5 नंबर भी रिपीट होते हैं। ओके, यानी 2 or more than 2 digits if they are repeating, then those 2 digits are written and on that upside line is given. This way line is given. Okay, so this is another method to write the answer. Okay, ये जो digits पे अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो डॉट देते हैं, एंड अगर डबल ट्रिपल नहीं तो ऐसे अगर डिजिट अगर रिपीट होते हैं तो उस पर क्या दिया जाता है? ऐसी लाइन दी जाती है। ओके, लेट अस कम टू थर्ड एग्जांपल। फाइंड द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2 इंटीजर 1/3। ओके, तो 2 इंटीजर 1/3 को कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 2 6 + 1 7/3 डिवाइड किया, उसका आंसर मिला 2.33। ओके, 2.33 यानी अगर ऐसा ही कंटिन्यू किया तो बहुत मेनी टाइम्स यू विल गेट 3। सो 2.33 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये 3 रिपीट हो रहा है तो 3 पर डॉट दिया, 2.3 एंड ऑन 3 व्हाट इज गिवन? डॉट इज गिवन, सेम एज लाइक दिस। ओके, ये दोनों एग्जांपल सेम टाइप के। ओके, और ये तो इसका क्या है? ये भी इसके टाइप का है, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। अब देखो यहां पर कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? 0.83333। तो यहां पर कौन सा रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है, तो ओनली ऑन 3 डॉट इज गिवन। 8 पर डॉट देना नहीं, 0.8 पर कुछ नहीं होना चाहिए। 3 रिपीट हो रहा है ना, तो ओनली द डॉट इज गिवन ऑन 3, राइट। सो लेट अस रीड द इंफॉर्मेशन। व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन? In all the above examples, यानी ये चारों एग्जाम्पल, the division does not come to an end. डिवीजन एंड हो रहा है क्या? ठीक तरह से फिर से देखो, इधर रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। ओके, डिवीजन खत्म ही नहीं हो रहा है। ओके, here a single digit or a group of digits occurs repeatedly on the right of the decimal point. डेसिमल पॉइंट के बाद या तो सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, नहीं तो ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड द रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, ये क्या है? रिकरिंग मतलब, रिकरिंग का मतलब क्या है? जो बार बार फिर से करना पड़ता है, आता है, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग। ओके, उसके लिए क्या, उसके लिए दूसरा वर्ड भी है, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये बुक में नहीं दिया है। ओके, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। मैंने पहले ही बोला था वो कि टर्मिनेटिंग से रिलेटेड है, तो वो वर्ड अच्छी तरह से ध्यान में रहता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। बट यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग के बदले क्या वर्ड यूज किया है? रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ये भी एकदम परफेक्ट है। रिकरिंग यानी एक ही डिजिट बार बार आता है, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग। ओके, दिस इज द परफेक्ट वर्ड। So next line, if in a decimal fraction a single digit occurs repeatedly on the right of the decimal point, we put a point above it as shown here. यहाँ पर ऐसा ऊपर एक पॉइंट देते हैं, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक पॉइंट देते हैं। एंड इफ अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स ऑकर रिपीटेडली वी शो इट विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अगर ग्रुप रिपीट हो रहा है, देखो 1818 का ग्रुप रिपीट हो रहा है, तो 18 पर क्या दिया जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। नाउ आई नो, इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? सम रैशनल नंबर्स, कुछ रैशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। उनका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो कैसे होता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब डिवीजन का लास्ट रिमाइंडर 0 होता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म।
while some have recurring decimal form, और बाकी कुछ डेसिमल फॉर्म का कैसे होता है, रिकरिंग डेसिमल. रिकरिंग यानी उनका डिनोमिनेटर जीरो आता ही नहीं है. ओके, बार बार कुछ नंबर्स रिपीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग. ओके, लेट अस डिस्कस. 2 लाइन है सिर्फ डिस्कस करनी. देन आफ्टर दैट वी गो टू प्रैक्टिस इट. Without using division, can we tell from the denominator of a fraction whether the decimal fraction of a decimal form of a fraction will be a terminating decimal? Find out. कुछ कह सकते हैं क्या? कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, बराबर. Now let us see practice set number 24. Okay, in this how many examples are there? 7. Okay, now let us see how many examples to solve. Practice set number 24. Question is, write the following rational numbers in decimal form. First example is there, 13 upon 4. 13 upon 4, what is the meaning? 13 upon 4, 13 divided by 4. 13 को डिवाइड करना है 4 से. ओके, 13 बड़ा नंबर है इसलिए कर सकते हैं. पहला 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1. ओके, नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस 1, लेकिन 1 को डिवाइड नहीं कर सकते. देन गिव डेसिमल पॉइंट. ओके, एंड इंस्टेड ऑफ दैट गिव हियर 0. ओके, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट 0 0 0 ले सकते हो. ओके, तो ये डेसिमल पॉइंट यहां पर दे दिया, ये 0 नीचे आ गए, राइट. ऐसे भी सोचो. नाउ 4 2 जा 8, 10 minus 8 2. नेक्स्ट 0 कम्स डाउन. ओके, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0. ओके, व्हाट टाइप ऑफ रैशनल नंबर इट इज? टर्मिनेटिंग. रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, राइट. ओके, वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं. क्वेश्चन क्या है? 13 upon 4 इज इक्वल टू व्हाट इज द आंसर? 3.25. करेक्ट. Let us move to example number 2. Example number 2 is -7 upon 8. -7 upon 8. अब ये निगेटिव फ्रैक्शन का तो हमने देखा ही है. ओके, क्या आंसर निगेटिव हो जाएगा. बाकी का तो डिवीजन तो करना ही है. ओके, तो डिवीजन 7 डिवाइडेड बाय 8. ओके, 7.000 करके लेते हैं. देन 0 पॉइंट. अब ये पॉइंट के बाद 0 आ गया. 8 8 जा 64, रिमाइंडर 6. ओके, 0 आ गया नीचे. 8 7 जा 56, रिमाइंडर 4. 0 आ गया नीचे. 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0. Okay, so what is the decimal form of -7 upon 8 is equal to what answer we got? 0.875. लेकिन यहां पर देखो न्यूमरेटर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा. ओके, दिस वी हैव लर्न इट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स 6th स्टैंडर्ड. ओके, कभी भी कौन से भी क्लास का मैथ्स याद दिया जाएगा वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए. Then come to example number 3. The example is 7 integer 3 upon 5. 7 integer 3 upon 5. Convert it into improper fraction. 5 7 जा 35 plus 3 38. 38 upon 5. Right? करो डिवीजन. 38 divided by 5. 5 7 जा 35, रिमाइंडर 3. ओके, इसके बाद डेसिमल पॉइंट और 0 0 तो होता ही है. ओके, तो इसके बाद क्या है? ये 38 के बाद डेसिमल पॉइंट है तो यार डेसिमल पॉइंट दे दो. ये 0 आ गया नीचे. ओके, ये 0 आ गया ना उसके बाद नीचे. देन 5 हाउ मेनी जा 5 6 जा 30, रिमाइंडर 0 0. ओके, सो देयरफॉर 7 इंटीजर 3 upon 5 is equal to what is the answer? 7.6. 7.6. Then example number 4.
What is the example number 4? 5 upon 12. 5 upon 12. Do the division. 5 divided by 12. ओके यानी 0.000 तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट तो होता है मालूम है. ओके सो 12 जीरो सा 0 रिमाइंडर 5. उसके बाद डेसिमल पॉइंट या डेसिमल पॉइंट दे दिया, ये 0 आ गया नीचे. ओके देन 12 4 सा 48 रिमाइंडर 2, ये 0 आ गया नीचे. 12 1 सा 12 रिमाइंडर 8, ये 0 आ गया नीचे. ओके 12 7 सा 12 6 सा 72 रिमाइंडर 8, अगेन 0 आ गया नीचे. अगेन 12 6 सा 72. ये तो ऐसा ही कंटिन्यू करेगा अभी 8, राइट. 8 कंटिन्यू हो जाएगा. ओके यानी यहाँ पर कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? 6. सो देयरफॉर व्हाट इज द आंसर? 5 upon 12 इज इक्वल टू 0.41. ये तो रिपीट नहीं हो रहा है. रिपीट कौन सा हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है. 6 पर डॉट दे दो बस. ओके दिस इज द आंसर 0.416. नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 5. एग्जांपल नंबर 5 इज 22 upon 7. 22 upon 7 ये फ्रैक्शन पूरा ध्यान में रखो, बहुत काम आने वाला है. 22 upon 7 दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई. अब ये पाई क्या है बाद में पता चलेगा. ओके बस ध्यान में रखो. ओके फाइंड आउट द वैल्यू. ये वैल्यू इवन 12 स्टैंडर्ड नहीं, इवन पूरा जब तक तुम्हारी पढ़ाई चलेगी मैथ्स की तब तक ये काम आएगा. ओके मैथ्स में भी काम आता है, फिजिक्स में काम आता है, बहुत सारे सब्जेक्ट में काम आता है ये. ओके बहुत काम की चीज है. रिमेंबर दिस 22 upon 7. कंप्लीट द डिविजन. 22 divided by 7. 7 3 is 21. Remainder 1. Okay. Decimal point 0. 7 1 is 7. Remainder 3. फिर से 0. 7 4 is 28. Remainder 2. 0. 7 2 is 14. Remainder 6. फिर से 0. 7 8 is 56. Remainder 4. यहां पर लेता हूं मैं. ओके रिमाइंडर 4. फिर से 0. 7 5 जा 35. रिमाइंडर 5. फिर से 0 दे दो. 7 7 जा 49. रिमाइंडर 1. देखो यहां का रिमाइंडर 1. ओके अब देखो कैसा रिपीट हो रहा है. फिर से 0 दे दो. 7 1 जा 7. रिमाइंडर 3. फिर से 0 दे दो. 7 4 जा 28. रिमाइंडर अब यहां पर लेता हूं मैं. रिमाइंडर 2. फिर से 0 दे दो. 7 2 जा 14. रिमाइंडर 6. फिर से 0 दे दो. 7 8 जा 56. ओके अब देखो 3.142857 यहां तक एक ग्रुप हो गया. 1428 इसके बाद 57 तो आएगा ही आएगा. ओके सो फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड विच डिजिट्स आर रिपीटिंग. So therefore 22 upon 7 is equal to 3.142857. बस ये सारे के सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन दे दो. करेक्ट. दिस इज द आंसर ऑफ दिस. देन कम टू एग्जांपल नंबर 6. इट इज 4 upon 3. करो डिवीजन कंप्लीट. 4 divided by 3. 3 1 जा 3. रिमाइंडर 1.0. 3 3 जा 9. रिमाइंडर 1. फिर से 0 दे दो. 3 3 जा 9. रिमाइंडर 1. फिर से 0 दे दो. 3 3 जा 9. रिमाइंडर 1. ये सर्कस तो ऐसे ही चलेगी. कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? 3 डिजिट रिपीट हो रहा है. सो इज इक्वल टू 4 upon 3 इज इक्वल टू 1.3. और 3 पर क्या करना है? डॉट देना है क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है. राइट. देन एग्जांपल नंबर 7. व्हाट इज 7 एग्जांपल? 7 upon 9.
7/9 करते डिवीजन 7 डिवाइडेड बाय 9 तो पहले 0 पॉइंट ओके तो 0 से किया 7 ओके डेसिमल पॉइंट दे दिया 0 7 9 जा सॉरी 9 7 जा 9 7 जा 63 रिमाइंडर 7 डेसिमल पॉइंट तो दिया है 0 अगेन 9 7 जा 63 रिमाइंडर 7 फिर से 0 9 7 जा 63 ओके अब ये नहीं खत्म होगा सॉरी इधर ये खत्म नहीं होगा कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है 7 सो आंसर इज 0.7 and on that dot is given right here our practice set number 24 gets over okay I will come with the next point with the next video that is rules for simplifying an expression बहुत simple है एकदम okay बहुत छोटा सा है but I will come with new video